Am I audible to all of you? Good evening, sir. Yes, sir. Okay. So, which chapter we are doing right now? The making of a global world. The The making of global. Okay. The making of the global world. So, I received mail from, yes, good evening, Manas Rikhari yesterday. Okay. Today, I received mail from Mayank Saxena and Arnav Singh. Right. So, very good. You both have sent your homework. And, okay. So, any doubt anyone has and what we did in previous class? What about the rest of the people? Whether they are taking this seriously or just leaving it out that I am asking for homework again and again. They should bother it or not. सर मैंने नोट्स जस्ट अभी कंप्लीट किए थे तो मैं भेज नहीं पाया. Okay. यस सर. What about the others? Nidhi Kumari and Intizar Chaudhary, Zaid Soran, यस Rishabh. सर. कल के लेक्चर के नहीं हुए बस. कल के लेक्चर के नहीं हुए. कृष्णा शर्मा, ऋषभ सिंह. Yes, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Can I hear a reply from those whose name I have taken right now? यस सर. सर मुझे सर कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला सर. Okay. कल मेरा मैथ का एग्जाम है और सर मुझको कल थोड़ा काम भी आ रहा था मेरे स्कूल का जो क्या चेक होना था इसलिए सर. Okay. What about the others? ठीक है, कोई बात नहीं. So it is up to you that whether you are preparing your notes or not, right? And I believe that you all are studying well and serious for your examination, and the degree of seriousness is clearly visible, right? So I hope you all will do good in your future. So let's start this chapter, right? So before going ahead, I would like to know that what I have taught you, whether you are aware of that or not, whether you have went through the entire concept or not, right? So yes. So my first question will be from Krishna Sarma. Krishna Sarma, are you there in this call? Krishna Sharma is there in this call. यस सर. कृष्णा, तुमको मेरी आवाज आ रही है? Krishna, am I audible to you? So he might be not hearing me. Okay, I hope that you will speak, right? In the class, you will speak. So definitely, my first question with you will be that whether you have completed your work or not. So whenever you will speak, you will have to answer my this question. Then only I will entertain your words or question or doubt, whatever you raise. So ठीक है. Apart from him, मयंक सक्सेना, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. So Mayank, in previous class, I must have. Mayank, could you please switch on your camera? Yes, sir. मयंक, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है पढ़ाया था कॉर्न लॉ के बारे में. हालांकि उसकी Yes. पिछली क्लास में बता दिया था, बट रीडिंग. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कॉर्न लॉ? सर कॉन्डो जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था. एक काम जो करो, है कैमरा एकदम सीधा करो, अपने फेस के सामने करो सीधा. लुक इन फ्रंट. अपने मोबाइल से तुमने क्लास जो है कि ज्वाइन किया है ना? यस सर. मोबाइल ऊपर उठाओ. तुम
ओके, अब देखो सीधे मोबाइल में। ठीक है, अब बताओ कौन सर लोग है। कॉन्डो जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जो है फार्मर्स के, जो फार्मर्स थे उनके फोर्स करने पे। ये कॉन्डो ये था कि ये जो जो फॉरेन इंपोर्ट है कॉर्न का, इसको रिस्ट्रिक्ट करता था। पर के जो है पर जो है ब्रिटेन में जो है पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, जो इनकम बढ़ रही थी लोगों की। तो जो वीट का और ये जो प्रोडक्शन, जो फूड कंजप्शन था वो इंक्रीज हो रहा था। तो फूड कंजप्शन इंक्रीज हो रहा था, तो जो है डिमांड बढ़ रही थी, और जो क्योंकि बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो अब तक तो ठीक था फार्मर्स के लिए, पर फिर जब इंडस्ट्रियलिस्ट ने देखा कि भाई इतने महंगे दाम में हम हमें ले रहे हैं ये सब, तो हमें जो है इससे नुकसान होगा। तो इसलिए उन्होंने बाद में गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप ये स्कॉन्डो को हटा दो। तो बाद में गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली और उन्होंने जो है वो लॉ हटा दिया। तो लॉ हटा दिया, तो अब जब फॉरेन फॉरेन से जो है चीप गुड्स आने लगे, तो जो ब्रिटेन के खुद के फार्मर्स थे वो कम्पीट नहीं कर पाए। तो उन ब्रिटेन के फार्मर्स ने क्या किया, अपने लैंड छोड़ दिए, जो है सिटीज में चले गए, विदेश चले गए। तो बेसिकली ये हुआ। बहुत अच्छा, मयंक सही कह रहा है अर्नव। Yes, sir. बहुत बढ़िया मयंक, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर आंसरिंग, आई एम हैप्पी टू सी दिस, आई एम हैप्पी टू हियर दिस। बहुत अच्छा, गुड। नाउ द नेक्स्ट वन वुड बी इंतजार चौधरी। इंतजार चौधरी, निधि कुमारी, समीर, ओके, बहुत अच्छी बात है। समीर ने जवाब नहीं दिया आपके, मयंक सक्सेना ने दे दिया, इंतजार ने नहीं दिया, कृष्णा ने भी नहीं दिया। ऋषभ सिंह, सर क्या? यस सर। ऋषभ सिंह आप बताइए कि आपने टेक्नोलॉजी का क्या रोल देखा ग्लोबलाइजेशन को एनहांस करने में। यस सर। सर सर अफ्रीका वगैरह में सर फूड सर फूड को ज़्यादा उगाया गया सर, ब्रिटेन वगैरह की सर जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए, जिसके लिए सर टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा रोल था सर। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और सर टेलीग्राफ हो गया, रेलवे लाइन का एक्सपेंशन हो गया सर, और जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स हो गए सर, उसमें इसका एक अच्छा एग्जांपल देखने को मिला था सर। जैसे कि जो मीट मीट था सर, अ, वो जो है पूरे पीपल को भी अवेलेबल होने लग गया, क्योंकि सर जो उसके सप्लाई ज्यादा अमाउंट में आने लग गई, और अ, जितनी सप्लाई आती थी वो ठीक तरीके से आ जाती थी। मतलब जैसे कि पहले काफी सारे कैटल वगैरह मर जाते थे सर, जैसे कि, और काफी सारे को जो है डिजीजेस हो जाते थे। लेकिन सर उसके रेफ्रिजरेटेड शिप्स आने के बाद सर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और सर अ, सर यही पढ़ा मैंने। आपको लगता है कि आपने जो भी बोला है वो कंप्लीट है। अम, सर मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा था सर, तो आपको लगता है कि आपने जो बोला है पूरा कंप्लीट आंसर दिया है, सारे पॉइंट्स को बोला है आपने। नो सर। कारण सर मैंने अभी जो मुझे 1 घंटा मिला था सर, मैंने इसी इसी 1 घंटे में सर जल्दी जल्दी से रिवाइज करा था सर, तो इसलिए। जल्दी के पीछे कोई वजह है। अम, सर मैंने कल की क्लास के बाद रिवाइज नहीं करा था सर, ये वाला जो पोर्शन था। नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके बैठना। ओके सर। यस, जैद सौरन, यस सर। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बताओ, और माइक अपना कैमरा ऑन करके बताओ। यस। यस सर। सर उसमें रेलवे वगैरह और टेलीग्राफ।
और सर स्टीमशिप का इस्तेमाल करा गया था। रेलवे वगैरह की एक्सपेंशन करनी गई थी, मतलब उन्हें उनमें सुधार लाया गया था। और इस शिप्स वगैरह जो थे, सर उनसे जो है मीट का ट्रांसपोर्ट होता था अमेरिका से यूरोप में। तो सर वो जो कई सारे एनिमल्स होते थे, तो उन्हें कुछ को डिजीज हो जाती थी, कुछ का वेट जो है वो लॉस हो जाता था, और कुछ जो होते हैं वो उसी में मर जाते थे। तो वहाँ पे जाते जाते जो है एनिमल्स की जो है कम संख्या हो जाती थी। तो सर वहाँ पे जो है फ्रोजन शिप का इस्तेमाल करा गया। फ्रोजन शिप में जो मीट ले जाया जाता था, वो एनिमल की कटिंग करके ले जाया जाता था। तो वहाँ तक पहुँचते हुए जो मीट जो था वो खराब नहीं होता था, तो लोगों के पास सही से पहुँच जाता था वो, सही से पहुँच जाता था। तो वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे से कंज्यूम कर लेते थे मीट को, और जो है कंट्री में जो है पीस बना रहता था। और सर जो पुअर लोग हैं उनमें पीस रहता था। और सर इतना ही पता है। आपको क्या लगता है, आपका आंसर कंप्लीट है? यस सर, ऐसा लग रहा है कुछ पॉइंट छूटे हैं। कुछ पॉइंट छूटे हैं, चलो ठीक है। अटेम्प्ट अच्छा था। अर्नव बताओ, क्या है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी? यस सर। सर विजिबल हूँ मैं? हम्म यस सर। सर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो था, ये बेसिकली इसको 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स। उस टाइम की जो नीड थी उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आए, और यही हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि उस टाइम जो ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म चल रहा था, तो उसके लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स देखे, जैसे कि रेलवेज का एक्सपेंशन हो गया, और शिप्स का मतलब स्टीम शिप्स आ गए। और प्लस एक कम्युनिकेशन का भी फैक्टर था जो बहुत नेसेसरी था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप 2 कंट्रीज़ या 2 रीजन्स के बीच में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ आ गया। इसके बाद जो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसका एक रोल हमें देखने को मिला जो मीट ट्रांसपोर्ट में था। यूएसए से एनिमल्स को स्लॉटर करके 1870s तक, मतलब उन्हें स्लॉटर करके, और नहीं, एनिमल्स को शिप्स में पैक किया जाता था, और यूरोप पहुंचने के बाद उन्हें यूएसए लिखा है या फिर अमेरिका लिखा है? सर अमेरिका, अमेरिका। यस सर। सर अमेरिका से यूरोप तक कैटल्स को ले जाया जाता था, और फिर वहाँ पे उनको स्लॉटर किया जाता था। और फिर इसमें डिसएडवांटेज ये थे कि कुछ कैटल्स जो है बीच में मर जाते थे, कुछ का वेट लूज हो जाता था, और कई जो है बीमारियों के शिकार हो जाते थे। इसकी वजह से मीट की क्वालिटी और क्वांटिटी पे जो है यूरोप में बहुत असर पड़ रहा था, और इस वजह से मीट जो है एक तरह से जितना डिमांड था उस हिसाब से मंगाया तो, लेकिन उतना पहुंचा नहीं, तो उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थे, और ये एक लग्जरी हो गया था एक तरह से। और पुअर जो लोग थे वो मीट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो इसके सॉल्यूशन में आए रेफ्रिजरेटेड शिप्स, जिसमें कि रेफ्रिजर्स हैं, और जहाँ पे अमेरिका से वहीं पे कैटल्स को स्लॉटर किया जाएगा, और फिर उस मीट को रेफ्रिजरेटेड शिप में रखा जाएगा, और वो यूरोप पहुंचेगा। और इसकी वजह से मीट के जो प्राइस है उसमें बहुत मतलब वो प्राइस गिर गए, और इसकी वजह से पुअर भी अब मीट को एक्सेस कर पा रहे थे। और ये जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता था यूरोप में, ये अमेरिका से और न्यूजीलैंड से भी मीट आता था, और इसकी वजह से जो लोगों का सपोर्ट था इंपीरियलिज्म के प्रति वो भी स्ट्रांग रहा। मानस, मानस रिखारी। चलो ठीक है, वेरी गुड अर्नव। सो आई थिंक यू ऑलमोस्ट Sir, am I audible now? all the हाँ मानस, Yes, sir. हाँ. have you heard what Arnav has said? Yes, sir. What we have shown over So here. do you Now, think that this Arnav is have the given the convex correct diagram. explanation of role of technology? Yes, sir. I think he has given the The complete A answer. diagram is shown concave or convex. चलो, very good Arnav. Almost you have completed the entire topic, right? तो मानस अब तुम बताओ। Actually converges. Yes, sir. It's coming on focus. Switch on your camera. Yes, sir. But if you look at the B diagram, you'll get to know that the ray is coming, but it is not. I going think to there is focus, a it will TV. converge. Your television is going on. ahead. No, sir. Sir, my sister is there. Sir. The television is working, I think. No, sir. No, sir. Sir, just a second. Yes, sir. So Manas, could you please explain what is Rinderpest?
Yes, sir. Yeah. Sir, sir, whole topic of Africa or sir only this disease? Yes, sir. Yeah. Render Your pestis. voice is not coming clear, Manas, today. I don't know. There is a problem with your mic today. सर एक्चुअली सर जो मेरा माइक है सर मेरी वेबकैम में है सर, वो मुझे थोड़ा पास जाकर बोलना पड़ता है तभी आवाज़ आती है। सर अब ठीक आ रही है? हाँ, बोलो। यस सर। सर जो रेंडर पेस्ट थी सर, ये सर जो यूरोपियंस हैं सर, उन लोगों के द्वारा एक जानबूझकर सर फैलाई गई बीमारी थी जो अफ्रीका की कैटल्स हैं उनके लिए। सर जो इसका मेन मोटिव तय करने का वो ये था कि जो अफ्रीकन नेटिव्स हैं, जो अफ्रीका में लोग रहते हैं, उनका वो लाइवलीहुड छीन सकें ताकि जो वो रिच अफ्रीकन्स हैं उनको वो मतलब माइनिंग एक्टिविटीज़ में, प्लांटेशंस में मतलब वो लेबर करा सके उनसे। उसके पीछे का सर एक मेन मोटिव था। ये उनका करने का मेन इंटेंशन था। सर इसके लिए सर जो ब्रिटिश एशिया है सर 1880s में यहाँ से लेट 1880s तो में। वो उनसे लेबर क्यों नहीं करा पाते थे? यस सर। सर वो उनसे लेबर इसलिए नहीं करा पाते थे क्योंकि सर उनके पास पहले से ही अफ्रीका में मतलब उनके पास लैंड रिसोर्सेज भी थे अपने, और सर उनके पास कैटल भी बहुत अच्छा था। जब यूरोपियन जब उनका मतलब कॉन्क्वेस्ट शुरू होने से पहले, तो सर जब वो उनके पास जाते थे कि आप हमारे लिए लेबर करो, तो सर उनके पास खुद इतना सारा काम होता था कि वो उनसे ही कहते थे कि आप हमारे लेबर कर दो क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा काम है। सर इसके लिए सर जो यूरोपियन थे उन्होंने कुछ स्टेप्स भी उठाए, सर उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सर जो रेंडर पे इसमें सर कंटिन्यू करता हूँ। लेट 1880s में सर जो ये बीमारी है, ये जो यूरोपियंस हैं उनके द्वारा इन्फेक्टेड कैटल्स को सर इरिटेरिया में सर भेजा गया। सर जो इरिटेरिया मतलब जो इटालियन सोल्जर्स हैं सर उनको फीड करने के लिए ब्रिटिश एशिया से वहाँ पे जो कैटल है भेजा गया सर। उसके बाद सर लेट 1880s की बात है। फिर 1892 में सर अटलांटिक कोस्ट में पहुंचा, और उसके बाद तो सर ये फॉरेस्ट फायर की तरह फैला। सर 1897 तक सर जो कि 5 इयर्स बाद है उसके, सर ये 90% ऑफ द कैटल को डिस्ट्रॉय कर चुका था। और जितने भी कैटल थी वहाँ पे अफ्रीका में, और सर वहाँ पे जो लोगों का लाइवलीहुड था, जो मतलब जो कैटल पर डिपेंडेंट थे मोस्टली, उनका लाइवलीहुड खत्म हो चुका था। और सर इससे मतलब वो लोग उनका जो प्लान था ताकि वो वहाँ के लोगों से लेबर करा पाए, वो सक्सेसफुल हो पाया। सर एक हाँ यस सर। और जो सर जो वो केप था सर, जो उसका नीचे वाला पॉइंट है सबसे ज़्यादा, ये मैं बताना भूल गया। केप जो है वो सदर्न मोस्ट शिप है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। वहाँ तक वो 1897 तक डिस्ट्रॉय कर चुका था कैटल्स। तो जो है कि उनसे काम कराने के लिए यूरोपियन ने क्या मेथड यूज किए थे, वो बताओ। सर कुछ स्टेप्स लिए थे सर। सबसे पहले तो सर उन्होंने टैक्सेस इतने ज़्यादा हाई कर दिए जिनको सिर्फ माइंस में और प्लांटेशंस में काम करके सर चुकाया जा सकता था। सर ये फर्स्ट स्टेप था। और सर जो सेकेंड स्टेप था हमने पढ़ा जैसे कि सर जो इनहेरिटेंस लॉज है सर उसको ड्रास्टिकली चेंज कर दिया गया। जैसे कि सर पहले क्या था कि जो लैंड था वो सारे मतलब जितने भी लोग हैं सब में इक्वली डिवाइड होता था, ब्रदर्स मेनली ब्रदर्स में। लेकिन सर अब जो न्यू लॉज इंट्रोड्यूस हुए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, वो ये थी कि सिर्फ एक इंसान के पास जो लैंड पूरा जाएगा, और बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं सर, उन इंडिविजुअल्स को अब मतलब उनके पास जितनी भी एम्प्लॉयमेंट सोर्स था मतलब वो उनसे हटा दिया गया। मतलब अब उन पर उनके ऊपर मतलब उनके पास अब कोई भी लैंड का या फिर अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढने का कोई सोर्स नहीं है। वो सर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयड हो गए। अब वो ना ही उस लैंड में कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे और ना ही उससे अपने लाइवलीहुड चला सकते थे। और सर उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि सर जब ऐसा हुआ और सर कैटल भी जब इनकी मार दी गई सर, सर इससे इसकी वजह से सर फिर लेबर लोगों को करना पड़ा। और सर जो माइन वर्कर्स थे सर उनको काफ़ी मतलब उनको एक ही जगह पर कन्फाइंड कर दिया जाता था। जैसे कि हमने इंडिया के केस में पढ़ा था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको बाहर नहीं निकलने, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, वैसा ही सर कुछ अफ्रीका के साथ भी हुआ था। अर्नव, यस यस सर। मानस ने पूरा पॉइंट बताया है? यस सर। सर पूरा तो बता दिया। ऑलमोस्ट डन है? यस सर, ऑलमोस्ट डन है। वेरी गुड मानस, गुड थैंक यू जॉब, सर। कीप इट अप। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आप में से कुछ लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को देखकर। ठीक है, और आई होप कि आप लोग सिलेक्शन ज़रूर देंगे, सिलेक्ट होंगे। राइट, तो पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, कहाँ तक पढ़ाया था?
सर इंडेंचर्ड लेबर स्टार्ट कर दिया। हमने माइग्रेशन वो स्टार्ट कर दिया था। रीडिंग वाला मतलब मैंने हो सकता है कुछ थियोरेटिकली बता दिया हो, Yes, sir. रीडिंग रह गया हो, कुछ ऐसा है? यस सर, रीडिंग बची थी। यस सर। रीडिंग यस कहाँ सर से याद बच रहा है। है? सर रीडिंग से स्टार्टिंग से ही करनी है वो टॉपिक से। रीडिंग कहाँ से? सर 2.4 से सर, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन इन इंडिया, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन इन इंडिया। फ्रॉम इंडिया। यस सर। कैटल और इंटरपेस्ट वाला हो गया है रीडिंग? यस सर, हो गया था आई थिंक। चलो, तो इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, राइट। तो आई थिंक इसमें ज्यादा मैंने नहीं बताया होगा, पूरा बता दिया है ये, पूरा सर कंप्लीट नहीं आपने है? नहीं हमें सर, बताया था केवल कि फर्स्ट पेज का ही बताया था। सर फर्स्ट लास्ट पॉइंट आपने बताया था कि मॉरिशियस वगैरह सब जगहों पे लेके जाता था और इन लोगों को सर धोखे में रखा जाता था कि ये जगह पर आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी, ये आपका ट्रांसपोर्ट का स्रोत होगा, लेकिन सर ऐसा अच्छा, कुछ भी नहीं ठीक था। ठीक ठीक, गॉट इट। तो एक काम करते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, ताकि रीडिंग करने से थोड़ा रिकैप हो जाएगा और फिर हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे विद दिस। तो रीडिंग के लिए हु विल रीड? रेज योर हैंड। हु इज लेट मी। कृष्णा शर्मा, आर यू देयर इन दिस मीटिंग? यस सर। मैंने आपको कई बार बुलाया था। सर एक्चुअली Where were you? सर my parents called me, so that's why I was missing sir questions. Sir, I tried to ask that you, but you said my name that didn't answer, so that's why I write it in the chat also. So, आप ये बताओ, what do you understand by Rinderpest? सर रेंडर Switch on your फेस्ट, camera. हाँ, सर मैंने वहां तक रिवाइज नहीं किया सर। इंडियन सर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और सर उससे पहले का रिवाइज कर लिया था। कॉर्न लॉ बताओ। यस सर। सर कॉर्न लॉ जो था सर ब्रिटेन में था सर। स्पेशली जैसे ब्रिटेन में ले पीजेंट्स होते थे सर, वहां पे जब वो क्रॉप उगाते थे तो वो ब्रिटेन में बेचते थे, तो कॉर्न लॉ उन्हें अलाउ करता था सर। एक तरह से कॉर्न लॉ स्टॉप कर देता था इम्पोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक सर इंडिया और बाकी सारे जो सर मेनली इंडिया सब चीप सा लेस प्राइस में मिल जाता था सर, और ज्यादा क्वांटिटी में। और क्योंकि सर सडनली बढ़ी थी उनकी पॉपुलेशन, तो चाहिए भी था, जिसके कारण सर कॉर्न लॉ को हटा भी दिया था बाद में सर। कॉर्न लॉ मतलब पीजेंट्स हटाया में क्यों था कॉर्न लॉ? सर क्योंकि पीजेंट्स को सर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि बाहर चीप में मिल जा रहा था, तो ज्यादातर लोग जो थे सर वही खरीद रहे थे, और उनका जो था वो हाई प्राइसेस में बेच सकते थे कॉर्न लॉ के कारण। पर अब क्योंकि बाहर से जो इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट हो रहा था चीप प्राइसेस में, तो उनका नहीं बिक रहा था, जिस कारण से उन्हें लॉस हो रहा था सर। पर क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो उन पुअर लोगों ने डिमांड किया कि बाहर से इंपोर्ट ही कराओ, क्योंकि फिर वो खा नहीं पा रहे थे सर, इस कारण से। और इंडस्ट्रियलिस्ट इसके सपोर्ट में नहीं थे, इंपोर्ट के? सर यस सर। सर वैसे मेरे को याद नहीं है सर इंडस्ट्रियलिस्ट थे या नहीं थे। ठीक से याद नहीं है अर्नव, कृष्णा? यस सर। यस सर। सर मैं मैथ के पेपर की प्रिपेयर कर रहा था सर, कल है ना। हर बार आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना? एक ही सर पॉइंट आप बार बार सर रिपीट कर रहे हो। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ही बता देते हो, या तो फिर कि जो है कि सर पेपर था आज, इस पेपर का प्रिपरेशन है, कल उस पेपर का प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन तो बेटा सबका हो रहा है ना, सभी लोग प्रिपेयर कर यस रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो एक ही बात बार बार कहना जो है कि ठीक नहीं है।
इसको पढ़ो अच्छे से, तुम कर सकते हो इसीलिए तुमसे कह रहे हैं, ठीक है। अच्छे से यस पढ़ाई सर। करो और नेक्स्ट क्लास में कोई एक्सक्यूज नहीं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन का आंसर करो। ओके सर। चलो रीड करो कृष्णा शर्मा। यस सर। सर आप प्रेजेंट करोगे स्क्रीन सर? स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। रीड करो। ओके सर। Indentured labor migration from India. The example of indentured labor migration from India also इंडेंचर्ड, endangered. इट्स इंडेंचर्ड। Sorry, sir. Indentured labor migration from India also illustrates the two-side nature of the 19th century world. It was a world of faster economic growth as well as m- measure, ग्रेट मेजरी। great misery, great misery, higher income for some and poverty for others. Technological advances in some areas and new forms of coercions कोअर्सन, coercers in others in कोअर्सन इन अदर्स। coercion in others in the आप लोगों 19th ने century. फिजिक्स में नहीं पढ़ा है कोअर्सिव फोर्स? सर कोहेसिव पढ़ा है। कोहेसिव, ओके, ठीक। यस सर। coercion in others. In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborer went to work on plantation, in mines, and in road and railway construction projects around the world. In India, indentured laborers were hired under contracts which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer's plantation. More Indian endangered worker came from the present day region of eastern Uttar Pradesh, Bihar, central India, and the dry district of Tamil Nadu. In the mid 19th century, these regions experienced many changes. Cottage, cottage industry, cottage industry declined. Land rent rose. Lands were cleaned for mines and plantations. क्लियर्ड। Cleared for mines and plantations. All this affected the lives of the poor. They failed to pay their rent, became deeply indebted, and were forced to migrate in search of work. ओके, तो अब इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ तक तो आई थिंक पिछले क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, राइट? Yes, Yes, sir. sir. The contract वाले Yes, point sir. पे शायद. ठीक है। सो अब मैंने बताया कि एज एन इंडेंजर्ड लेबरर दे विल गो टू अदर लैंड एंड देयर दे विल look for work, but the working condition you will find is very deteriorative, right? Means they were very surprised to look after the kind of work they will have to do, right? And सो व्हाट हैपेंड कि वहाँ पे जब पहुँचे सभी लोग, तो मतलब जो इंडेंचर्ड लेबरर थे, तो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन को देख के वो जो है ये समझ नहीं पा रहे थे दैट व्हाट दे शुड डू। बहुत सारे लोग जो है कि क्या करते हैं, वहाँ से निकल के कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। मतलब द वेरी कन्फाइंड एरिया वेयर दे यूज टू लिव, ठीक है, वहाँ से वो बाहर निकल के कहीं और चले जाते हैं, जो कि आपने असम वाले केस में पढ़ा था, राइट? तो अब यहाँ पे जो सोसाइटी है, ठीक है, वो सोसाइटी में जो कल्चर पहले एग्जिस्ट कर रहा है, उस कल्चर में क्या हो जाते हैं,
ये इंडेंचर्ड लेबरर जाके ऐड हो जाते हैं। अब जब कल्चर में ऐड होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इंडेंचर्ड लेबरर हैं ये अपने साथ अपना कल्चर लेके आए हैं, ठीक है, एंड दे आर गोइंग एंड सेटिंग अप देमसेल्फ, ठीक है, सेटलिंग अप देमसेल्फ इन डिफरेंट कल्चर। तो यहाँ का कल्चर प्लस जो कल्चर वहां से आया है कहीं और कंट्री से, वो कल्चर क्या हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा एंड वी विल गेट अ न्यू कल्चर। समझ में आया ये बात? यस सर। तो ये ऐसा नहीं है कि ये तुरंत होता है, दिस विल हैपन, बट इट विल हैपन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एक्चुअली, you will not realize it, but within a 5 year 10 years 20 years आप रियलाइज कर पाओगे कि कल्चर में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। और इसी का एग्जांपल भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे जाके वो सेटल्ड हुए थे, इंडेंचर्ड लेबरर का काम कहाँ पे कराया जाता था ज्यादा, कैरेबियन आइलैंड, त्रिनिदाद, गुआना और सूरीनाम, ठीक है, मॉरिशस, फिजी, कल मैंने हो सकता है ये बताया भी हो, तमिल, सेलोन, मलाया, राइट, यहीं पे जाते थे और काम करते थे। और असम के बारे में भी शायद मैंने बताया, ठीक है। Yes, और ये sir. रिक्रूटमेंट कराता कौन था, दिस रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स, ठीक है। कौन कराता था, एजेंट्स। एजेंट्स को इसके लिए क्या मिलता था, पैसा मिलता था। कौन देता था, ब्रिटिशर्स, जो प्लांटेशन ओनर्स हैं वो, या फिर जो यूरोपियंस हैं वो, ऐसे कहो, राइट। यहीं तक कल बढ़ाया था, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन सभी को विजिबल है बच्चों? यस यस सर। सर। हाँ, तो एजेंट क्या करते थे, एजेंट्स रिक्रूटमेंट करते थे, दे यूज्ड टू डू रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके लिए एजेंट्स को क्या मिलता था, कमीशन। क्या मिलता था, कमीशन, राइट। तो अब एजेंट कैसे रिक्रूट करते हैं, अब क्योंकि उनका कमीशन बना हुआ था तो वो कैसे रिक्रूट करते थे, वो जो है कि लोगों से बात करके, लोगों को जो है लुभावने, जो है चीजें बताकर, ठीक है, उनको जो है कि क्या करते थे, मोबिलाइज करते थे कि जाओ और आप जो है कि एक दूसरी कंट्री है वहां पे जाओ, वहां 4 साल 5 साल काम करो, बहुत सारा पैसा कमाओगे और यहाँ पे आके अपने कर्ज माफ, तुम्हारे कर्ज जो है उतर जाएंगे, जो डेप्ट तुम्हारे ऊपर है वो हट जाएगा। यहाँ पे डेप्ट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो पेजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, उनकी जो ओवरऑल अर्निंग थी वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और वो मनी लेंडर से बहुत ज्यादा पैसा ले चुके होते हैं और उसके वजह से उनकी लाइफ क्या है, मिजरेबल है, ठीक है। तो वो इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। उनको क्या पता था एजेंट ने उनके साथ क्या किया है, उनको चीट कर रहा है एजेंट, ठीक है। एजेंट ये नहीं बताता था यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस काम होगा, जाओ लेबर वाला काम है, काम करो। ये नहीं बताते थे कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं होगा। जो एक लेबर को जो है एज एन एम्प्लॉयर, ठीक है, जो है एम्प्लॉय को जो भी फैसिलिटी देनी चाहिए, ठीक है, वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे वर्किंग कंडीशन कैसी होगी ये भी नहीं बताते थे। इनको फॉल्स इंफॉर्मेशन देते थे। कैसे इंफॉर्मेशन देते थे, फॉल्स, झूठ बोलकर, ठीक है, बहला फुसलाकर कहते थे जाओ काम करो, ठीक है। काम कैसा होगा, वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, कुछ नहीं बता रहे। एक लंबे समय जो है कि बस किसी तरीके से उनको वहां से, वो उनको क्या करना था, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कराना था, और जब वो शिफ्ट करा लेते थे तो उनका कमीशन उनके पास पहुंच जाता था, ठीक है। सो दिस वाज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। जो पढ़ोगे आप, दिस वाज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी कराना तो है, बट ये नया सिस्टम है। टाइम पीरियड 1814 से 1914, ठीक है। पहले तो डायरेक्ट स्लेव बना लेते थे, बट अब नया फॉर्म है स्लेवरी का, ठीक है। जब वहां पे पहुंचते थे लेबर, आपको मैंने बता दिया गया है कि वहां पे कोई राइट्स था ही नहीं उनका, बस एक स्लेव की तरह उनको काम करना है और काम करते रहना है। ज्यादा उसमें जो है कि अपना उसमें राय नहीं देना है, अपने राइट्स के बारे में नहीं बात करना है, ठीक है। और जो भी, ठीक है, एक राइट होनी चाहिए इंडिविजुअल की, उसके बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ एक ही चीज करना है, काम करना है, ठीक है। और वर्कर्स जब वहां पहुंचते थे तो उनको जब ये सब पता लगता था तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते थे, एंजियस हो जाते थे
कि अब जो है कि अब यहाँ पे हम क्योंकि बहुत दूर से आ चुके हैं, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। हम तो किसी तरीके से पैसे लेकर किसी तरीके से यहाँ पे पहुंचे हैं, तो अब इसमें कैसे सरवाइव किया जाए। तो कुछ लोग उसमें कोशिश करते हैं सरवाइव करने की, कुछ लोग सरवाइव नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि वहां पे काम करने लायक स्थिति तो है ही नहीं। और भागते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो पनिशमेंट होगा, जैसे कि आपने टी प्लांटेशन वाला केस पढ़ा है असम का। यस सर वहां पे उन लोग को पकड़ लिया था तो ब्रूटली Yes, sir. मतलब हाँ। पीटा गया था। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। बट जो नहीं पकड़े गए वो जाके अपना एक जो है नया वे ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहां पे वहां के कल्चर में जुड़ जाते हैं, अपना कल्चर भी लेके आते हैं साथ में। ठीक है, अपना भी कल्चर क्या करते हैं, साथ में ले आते हैं। तो ये कल्चर और ये कल्चर मिलके, ठीक है, एक नया कल्चर बन जाएगा। ठीक है, ये मिलाकर दोनों क्या बनाएंगे, एक नया कल्चर, जो कि ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। सर जो ये न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी है, मतलब जो लोग गए वो कभी वापस ही नहीं आए, ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार ये बात सही हो। ठीक है, बट ज्यादातर लोग तो वहीं रह गए, कुछ लोग वापस भी आए। राइट। ओके सर। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जाम्पल आपका त्रिनीदाद का। कहाँ का? त्रिनीदाद का। त्रिनीदाद आपका कहाँ है? कैरेबियन में। ठीक है, यहाँ पे मुहर्रम जानते हो आप सभी लोग? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे जो मुहर्रम है वो बदल के किसमें आ गया था? होसे में। ठीक है, अब इसमें होसे में ये चेंज हुआ और इसमें सभी रिलीजियन, ऑल रेसेस एंड रिलीजियन क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो किसी एक रिलीजन से ये रिलेटेड है, बट होसे होने के बाद इसमें सारे जो है कि रेसेस और रिलीजन क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। सर मतलब नेम चेंज कर दिया था। हाँ, मतलब होसे ना, हालांकि अभी भी ये इमाम हुसैन के लिए ही है। ठीक है, किसके लिए है? इमाम हुसैन के लिए ही है। बट यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे सारे रेसेस और रिलीजन क्या कर सकते हैं? इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे कौन आता था, कौन होते थे ये रेसेस और रिलीजन वाले? ज्यादातर कौन है ये आप देखोगे तो ये वर्कर ही हैं। कौन है? वर्कर ही है। वर्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप इसी तरीके से एक और भी है, रुको, नेक्स्ट रस्ताफरियनिज्म। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, रस्ताफरियनिज्म, इसको लिख लीजिएगा। हो सकता है इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, होसे के बारे में और रस्ताफरियनिज्म के बारे में। ठीक है, रस्ताफरियनिज्म क्या है? इसमें भी आप देखोगे रस्ताफरियनिज्म में भी सोशल और कल्चरल लिंक देखा जाता है। सोशल और कल्चरल लिंक किसका देखा जाता है? इंडियंस का। ठीक है, इसको पॉपुलराइज किसने किया था? जमाइकन पॉप स्टार, क्या नाम है उनका? स्टार बॉब मार्ले। राइट। यस सर। यस सर। ये याद रखिएगा। तो रस्ताफरियनिज्म में जो है इंडियन सोशल और कल्चरल का रिफ्लेक्शन था। राइट, वहां पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पे देयर इज अ स्पेस। चलो तो नीचे देखते हैं। एक म्यूजिक का नाम है जिसका नाम है चटनी म्यूजिक। कौन सा म्यूजिक? चटनी म्यूजिक। चटनी म्यूजिक। ये कहाँ पे पॉपुलर था? दिस वाज पॉपुलर इन त्रिनिदाद एंड गुआना। ये कहाँ पे है? दिस इज इन कैरेबियन। कहाँ पे है? कैरेबियन। ठीक है,
तो ये भी क्या है, एक ऐसा म्यूजिक है जो कि देखा जाता है कि इसमें डिफरेंट कल्चर क्या है, इंक्लूडेड है, जिससे एक नया फॉर्म ऑफ कल्चर, एक नया फॉर्म ऑफ म्यूजिक देखने को मिलता है जिसमें अलग अलग कल्चर से कुछ ना कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आफ्टर इंडेंचर्ड, ठीक है, आफ्टर इंडेंचर्ड टाइम, ठीक है, जो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इंडेंचर्ड लेबरर वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। तो दिस फॉर्म ऑफ म्यूजिक वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडेंचर्ड टाइम। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। लास्ट पॉइंट यस सर। एक बार बता दीजिए। अब ये जो हमने देखा कि अलग अलग कल्चर का क्या है आपस में लिंक जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये वही बात कह रहा है जो हमने ऊपर अभी पढ़ी। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि दो से अधिक कल्चर मिलके एक नया कल्चर बना रहे हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक कल्चर मिलके एक नया कल्चर बना रहे हैं, और इस कल्चर की वजह से एक नया ग्लोबल वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है। कैसा वर्ल्ड? ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि सोसाइटी को क्या बना रहा है, हेट्रोजीनियस बना रहा है। सोसाइटी को क्या बना रहा है, हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे जो आपको याद करना है वो ये चटनी म्यूजिक, कहाँ, त्रिनिदाद गुआना, रास्ताफारिनिज्म, इट इज इन रास्ताफारिनिज्म, जमाइका, ठीक है, एंड देन होसे, मुहर्रम जो मनाया जाता है होसे, वो कहाँ, त्रिनिदाद में। तो ये सब कल्चरल फ्यूजन का एग्जाम्पल है, जो ये बताता है कि जब इंडेंचर्ड लेबरर्स वर मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, हाउ डिफरेंट कल्चर इवॉल्व ड्यू टू देम। जो उनका अपना ओरिजिनल जो फॉर्म था वो फॉर्म क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसमें एक नया फॉर्म ऐड हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में अगर आप देखो, सो देर इज अ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन इंडिया ऑल्सो, बट वी एट द सेम टाइम ट्राई टू प्रिजर्व आवर ओन कल्चर, अपना कल्चर प्रिजर्व करना चाहते हैं, बट देर इज अ वेस्टर्न टेस्ट ऑल्सो वाइल वी आर फॉलोइंग ऑन आवर ओन कल्चर। आफ्टर मीन्स बिफोर 1600, या फिर आप देखो वैदिक, सिंस वैदिक पीरियड, जो भी इंडियन कल्चर था, जो भी सनातन धर्म का कल्चर था, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। क्या कल्चर अभी भी उसी तरीके से फॉलो होती है? देन द आंसर इज नो। ऐसा कैसे हुआ? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट पीपल आए, दे सेटल्ड ओवर हियर एंड दे चेंज्ड आवर कल्चर अ बिट, एंड दे मेक मीन्स आवर कल्चर वाज मिक्स्ड अप विद देम आल्सो। क्या अपना कल्चर एकदम प्योर फॉर्म में है? देन द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ सर 15th सेंचुरी में सर हमने पढ़ा था कि चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। सर हाँ। क्या वो सही एक्शन था या नहीं था? वो तो चाइनीज बताएंगे ना, वो तो चाइनीज बताएंगे कि उन्होंने ये जो डिसीजन लिया क्या वो सही लिया या नहीं लिया। अब जब चाइनीज से पूछोगे तो चाइनीज क्या कहेंगे कि हमने सही डिसीजन लिया, हमने अपना कल्चर को प्रिजर्व किया, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया। हम जो है कि आज देखो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, ठीक है, वी आर डूइंग बेस्ट इन ट्रेड, हमारा पर कैपिटा इनकम अच्छा है, हमारे पास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी हम अच्छे पोजीशन पे हैं। व्हाट दे विल आंसर? दे विल आंसर लाइक दिस। सर क्योंकि सर जब आइसोलेशन खत्म हुआ था तब शायद बहुत सर इंडिया से भी कम सर सबसे ज्यादा चीप लेबर वहीं का मिलता था। सर मैंने पढ़ा था कहीं पे। सर क्या हाँ, ये सही? चीप लेबर तो अभी भी मिलता है। सर चीप सबसे लेबर के ज्यादा वजह से ही तो वहां पे एमएनसीज जाती गई थी, राइट। चीप लेबर तो एक बहुत बड़ा कॉज है चाइना के डेवलपमेंट का। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कल्चर वाला पोर्शन? यस सर। यस सर। सर एक डाउट है सर, मतलब इंडेंचर्ड लेबर का तो मीनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होता है, तो सर क्या कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं था कभी भी? मतलब कभी पता इंडेंचर्ड नहीं लेबरर को बताया जाता दैट यू आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 years। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 years, बट हालांकि ये सारे इंफॉर्मेशन जो भी है वो क्या है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है।
मीन्स ओवरऑल देखा जाता था कि ये 5 साल है, बट कभी कदार ये फॉलो हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। Yes, sir. Okay, sir. काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो बहुत सारे, अब जब लेबरर वहां पे गए हैं, वहां पे रह जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट उनका जब एंड हो रहा है तो वो जो है कि सोचते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है और यहाँ पे कई दिनों से रह भी रहे हैं, यहाँ का कल्चर जो है कि वहां से अच्छा भी, मतलब वहां जाएंगे तो जो है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आ जाए, और फिर से वही वाली जिंदगी, यहाँ का कल्चर थोड़ा मुझे डिफरेंट लग रहा है और यहाँ के लोग अच्छे हैं, एकोमोडेटिव हैं, कई सारी बातें। तो वो डिसाइड करते हैं कि दैट अब रिटर्न करने के क्या फायदा, अब यहीं रह जाते हैं। अब बहुत सारे लोग रिटर्न भी हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई है बात? Yes, sir. तो बहुत सारे लोग, अगर इंडिया की बात करें, जो इंडेंचर्ड लेबरर गए थे इंडियंस, वो क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। अब वो आपका श्रीलंका हो, वहां सेटल्ड हो गए, चाहे आपका कैरिबियन हो, वहां पे सेटल्ड हो गए, फीजी हो, फीजी में सेटल्ड हो गए। ठीक है, आपने पढ़ा है ना अलग अलग जगहों पे जहां पे प्लांटेशन वर्क हो रहा था वहां पे सेटल्ड हुए। यस सर। मॉरिशस में भी बहुत सारे इंडियन हैं, आप जानते हो। यस ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल कैसे कि पता लग पाएगा, मतलब क्या एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि वहां पे इंडियंस रह रहे हैं? तो आप एक नाम सुना होगा आपने, वीएस नायपॉल। कौन है वीएस नायपॉल? इनके बारे में आपको पता करना है कौन है। इनको नोबेल प्राइज मिला है, राइट? दिस इज योर होमवर्क, फाइंड आउट ऑन इन विच फील्ड ही गॉट द नोबेल प्राइज। ठीक है, और फिर उसके बाद एक जो है क्रिकेटर हैं, आपका नाम, उनका नाम है शिवरने चंद्रपॉल। Yes, आपको sir. लग रहा है कि ये इंडियन है बाय नेम? No, sir. West Indian है. यस सर। वेस्ट है तो वेस्ट इंडियन। आपको लग रहा है कि इनका डिसेंडेंट ये इंडियंस हैं? इनके नाम से कुछ ऐसा लग रहा है कि इंडियन ओरिजिन होगा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बाय लुकिंग आफ्टर दिस शिव, राइट? Yes, sir. यस। तो इसी तरीके से एग्जांपल्स हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि किस तरीके से यहीं के लोग जाके वहां पे क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। इनके नाम से पता लग जाता है, दे आर द डिसेंडेंट ऑफ इंडिया और डिसेंडेंट ऑफ फ्रॉम द इंडेंचर्ड लेबरर हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब इसके बाद जब फ्रीडम फाइटिंग हो रहा था तो एट दैट टाइम पीपल, द नेशनलिस्ट लीडर्स वर वेरी curious, they are very serious, right? Curious as well as serious, that why people are migrating from India to any other country. We should rather have a law. On what basis Britishers are taking away Indians from their mainland, their motherland? And if they are going, then the working condition is very deteriorable or deteriorative. You should rather provide a good working condition. You should obey your contract. You should and the Indians who are migrating should return in a specific time, in a specified time. Why they are not returning? तो ये cause बनता है, and it was abolished in 1921. क्या हो गया था? abolish हो गया था। कब? 1921। 1921 में कौन सा मूवमेंट चल रहा था? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, Non-God. राइट? यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे उनका जो स्टेटस है, जो कैरिबियन आइलैंड में अगर आप देखो, या फिर आपने सीलोन में देखो, या श्रीलंका कह लो, या फिजी में देख लो, क्या इंडेंचर्ड लेबरर्स को इक्वल स्टेटस दिया जाता है? No, sir. नो। No, sir. चाहे वो श्रीलंका में हो, श्रीलंका का भी हमने पावर शेयरिंग में पढ़ लिया, फिजी का भी हमने देख लिया 9th में। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा है कि उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है। तो नायपॉल ने इस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि कैसे वो जो है कि वेस्ट इंडिया में, जो कैरिबियन कहा जाए, कैरिबियन में किस तरीके से जो इंडेंचर्ड लेबरर आए, आगे रहने तो लगे,
बट उनके साथ क्या था, डिस्क्रिमिनेशन होता, दे वर बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम मेनी ऑफ द थिंग्स विच दे शुड हैव। एलिनेटेड वर्ड से आप फैमिलियर होंगे, ये आपने पढ़ा होगा पावर शेयरिंग में कहीं ना कहीं, राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है? एलिनेटेड याद आ रहा है वर्ड? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, तो अपने आप को वो क्या समझते थे? कूली के तौर पे, दैट दे आर नथिंग बट अ कूली। ठीक है, जो काम करने वाला आदमी है, कूली जानते हो ना, बैग वैग ले जाना तो अपना स्टेटस एज अ कूली ही मानते थे। ठीक, अब ये तो इंडेंचर्ड लेबरर की बात हुई, जो कि आपने जो है 1814 और 1914 के टाइम ऑफ पीरियड में देखा। अब इसके साथ साथ जो ग्लोबल वर्ल्ड बना, तो इस ग्लोबल वर्ल्ड में क्या इंडियन रिसोर्स या एंटरप्रेन्योर्स सक्सेसफुल थे? क्या उनको कुछ मौका मिला था बिजनेस करने का? Then the answer is yes. They got an opportunity to work abroad. Right? उनको अपॉर्चुनिटी मिला था कि वो जाके बाहर काम कर सकें। जब हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर्स, जब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो वहां पे ये पॉइंट आएगा कि जब दूसरी कंट्री आके हमारे यहाँ बिजनेस कर सकती हैं, तो क्या हम दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस कर सकते हैं? क्या हमारे पास भी ऐसा ऑप्शन होता है? देन द आंसर इज यस। आंसर क्या है बच्चों? यस। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी बाहर जाके काम करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे आपके शिकारीपुरी शॉप है, शिकारीपुरी शॉप्स, ठीक है, एंड ये सब नाम याद रखिएगा, नटुकोटाई चेटियर, ठीक है, नटुकोटाई चेटियर। ये कौन है, क्या नाम है इनका, क्या रिलेवेंस है? ये बैंकर्स हैं और ट्रेडर्स। ये ऐसे बैंकर्स ऐसे बैंकर्स और ट्रेडर्स हैं जो कि किसको फाइनेंस करते थे? एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट को क्या करते थे? फाइनेंस करते थे। कोई अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो उसको हेल्प करते थे, पैसा देते थे कि आप एक्सपोर्ट अपना सामान कर पाओ। ठीक है, कहां पे? सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया आप लोगों को क्लियर है ना? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यस सर। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब देख रहे हो, साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएगा। यस सर। तो इन जगहों पे ये पैसा दिया करते थे कि आप लोग जो है अपना सामान बेच सकते हो बाहर दूसरे कंट्री में, अगर पैसा चाहिए तो आप हमसे ले लो। दिस वाज द बिजनेस व्हिच दे यूज्ड टू डू। Who? शिकारीपुरी शराफ्स एंड नटुकोटाई चेटियर। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट? सर एक चीज पूछनी है। सर जैसे यहाँ पे शिकारीपुरी श्रॉफ्स है और ये नटुकोटाई चिटियर्स है, सर ये मतलब नेम्स एक ही हैं और यहाँ पे एस लगा है, दिस मीन्स ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स थे, या फिर सर यही दो लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स थे? यही दो लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब इन्हीं से रिलेटेड शिकारीपुरी शॉप्स हैं और चेटियर्स नाम से, हालांकि ये दो प्रोमिनेंट वन है, राइट? ओके। इन्हीं से जो इनके डिसेंडेंट हैं, ठीक है, वो ज्यादा क्या करते थे, इसी बिजनेस में इन्वॉल्व करते थे। ठीक है, अब जैसे पढ़ते हो, कोई आपने ऐसा पढ़ा है कहीं, जैसे फॉर एन एग्जांपल XYZ एंड सन्स, ऐसा पढ़ा है? यस सर। कुछ ऐसा ही है, राइट? सर जैसे टाटा गिनेंगे सर हम इनमें? टाटाज नहीं, टाटा में क्या लिखा रहता है? सन्स? नहीं सर मैं कह रहा हूँ एंटरप्रेन्योर में। एंटरप्रेन्योर में, हाँ, टाटा के बारे में हम पढ़ेंगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बट टाटा ने तो काम पहले यही किया था ना, टाटा ने तो शुरुआत यहीं से की इसको। यस सर। ठीक है,
चलो ये तो एक सर इंडिया से ही की थी ना? हाँ सर इंडिया से ही तो की थी उन्होंने भी। हाँ, उन्होंने इंडिया से की थी इलीगल ट्रेड करके। ओके सर। ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो अच्छा ये क्लियर है सभी को? पहले ये बताओ। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये अपने Yes. पैसे लगाते थे या फिर यूरोप से पैसे, यूरोपियन बैंक से पैसे लेकर ये फाइनेंस को जो है कंडक्ट कराते थे। और इसके लिए इन्होंने एक अच्छा अपना सिस्टम भी बना रखा था, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम था जिसके थ्रू ये काम करते थे एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो अब इसके अलावा क्या और भी लोग हैं? यस, और भी लोग हैं जो अफ्रीका में काम कर रहे हैं। जो एग्जांपल आपके बुक में दिया है सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ। क्या नाम है? हैदराबादी, हैदराबादी सिंधी, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है लोकल लोगों से वेंचर करके यहाँ पे अफ्रीका में इंडियन सामान को क्या करते थे, बेचते थे। ठीक है, क्या करते थे, इंडियन सामान को बेचा करते थे। एक अपना जो पोर्ट वगैरह, जो पोर्ट आपने पोर्ट जानते हो आप, जैसे इंडिया में सपोज, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर सपोज यहाँ पे कोई पोर्ट है तो यहीं पे अपना एक एम्पोरिया सेट कर लेते थे, तो क्योंकि पोर्ट पे एक्टिविटी ज्यादा होती है खरीदने और बेचने वाली, जानते हो इस बात को? Yes, sir. यस सर। तो ये अपना एम्पोरिया वहीं पे सेट कर लेते थे और वहीं पे ट्रेडर से मिलकर अपने सामान को बेचा करते थे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड इन्होंने अपना इसी तरीके से एम्पोरिया सेटअप कर दिया था, पर्टिकुलरली अफ्रीका। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? वो मैंने देखा था। तो पर्टिकुलरली ये कौन खरीदता था? जो टूरिस्ट हुआ करते थे। जब टूरिस्ट जाते थे तो जो है कि टूरिस्ट ऐसे चीजों से अट्रैक्ट होते थे और खरीदते थे। तो ओवरऑल हम इसमें ये समझ रहे हैं किस तरीके से जो इंडिया में लोग थे, बिजनेसमैन थे या फिर पैसे वाले लोग थे, वो कैसे बाहर निकल के बिजनेस करते हैं। ठीक है, कैसे उनको भी मौका मिलता है बिजनेस करने का। ठीक है, अगर दूसरी कंपनी आके, दूसरे लोग आके यहाँ इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को भी मौका मिला था बाहर जाके ट्रेड करने का। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, yes, sir. यस सर। सर एक डाउट है सर, ये Yes, sir, जो clear. शिवकारी जो ये शिकारपुरी शॉप्स और ये जो सर चेतियार्स हैं सर, सर ये खुद भी एंटरप्रेन्योर्स थे ना, या फिर ये हाँ, सिर्फ हेल्प करते थे एंटरप्रेन्योर्स? ओके सर। ठीक है, इनको एंटरप्रेन्योर्स ही कह रहे हो ना? यस सर। सर ये खुद भी हाँ, तो थे ना, बस यही पूछ रहा था। ओके क्या कह रहे हो? सर, बस यही पूछ रहा था कि ये लोग खुद भी एंटरप्रेन्योर्स ही थे ना, या फिर सिर्फ हेल्प करते थे एंटरप्रेन्योर्स की? एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ये हुआ कि नॉलेज एंड एंटरप्राइज। ठीक है, अगर है तो यू आर एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यू हैव अ कैपिटल, यू हैव नॉलेज एंड एंटरप्राइज, यू हैव, इफ यू हैव सेट अप योर एंटरप्राइज, ठीक है, देन यू विल बी एन एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर का मतलब व्हाट, जो कि क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। यस सर। ठीक है, बाय मीन ऑफ रनिंग अ फैक्ट्री और एन इंडस्ट्री और अ फर्म। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन अगर आप देखोगे तो आपका है ट्रेड के रिलेटेड। ठीक है, इंडियन ट्रेड और कॉलोनियल सिस्टम। ठीक है, कॉलोनियलिज्म और इंडियन ट्रेड किस तरीके से था। ठीक है, और ये ग्लोबल सिस्टम पे जो है, ग्लोबल सिस्टम किस तरीके से रन होता था ड्यू टू दिस कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया में जानते हो, इंडिया इज बिलीव टू बी द होम ऑफ कॉटन। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। यस सर।
हाँ, तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था बच्चों, कॉटन के बारे में। ठीक है, तो कॉटन क्या है? इंडिया इज बिलीव टू बी अ होम ऑफ कॉटन, ये आप जानते हो सभी लोग। यस सर। यस Yes. सर। और कॉटन एज अ रॉ मटेरियल यहाँ से जो है कि पहले तो हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी अपनी जो थी काफ़ी फ्लरिश कर रही थी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी बता रखा है। ठीक है, और वी यूज टू गेट gold and silver metals from European countries. The handicraft Yes. textiles were of in great demand. ठीक है, तो आपके टेक्सटाइल्स हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जो है आपका स्पाइसेस हो गए। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें थी डिमांड में थी। और क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत मतलब हम लोग जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती थी हम खुद ही बना लेते थे, तो हम खरीदते कम थे और बेचते ज़्यादा थे। और उनके पास क्योंकि हमें बेचने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो अपने प्रीशियस मेटल्स हमें दिया करते थे। आई थिंक इतना तो सबको मालूम है। Yes, sir. यस यस सर। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो गया यहाँ आपके इंग्लैंड में और ब्रिटेन में, तो इनको क्या चाहिए? फाइन कॉटन। और फाइन कॉटन मिल कहाँ रहा है? इंडिया में। अब इंडिया में ऐसा क्या करें कि इंडिया अपना जो है कि ये कॉटन जो हमें दे रहा है वो देते रहें और हमसे गोल्ड एंड सिल्वर ना लें। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, ऑल थ्रू आउट द यूरोप हालांकि डिमांड में था, तो कुछ यूरोपियन कंट्री जो है कि कुछ कंपनीज निकलती हैं। ठीक है, और जाके सेटल हो जाते हैं इंडिया में। तो कुछ आपकी जो है कंपनीज यूरोप से कौन कौन निकल रही हैं? कुछ डच की कंपनियां निकलती हैं, फिर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी निकलती है। ठीक है, फिर आपसे जो है डच पोर्टुगीज वाले आते हैं, फिर फ्रेंच कंपनी आती है, सब सेटल होते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। ठीक है, अब ब्रिटेन में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तो ब्रिटेन भी अपना कॉटन क्या करता है? कॉटन कल्टीवेट करता है। ठीक है, अब जब कॉटन कल्टीवेट कर रहे हैं ब्रिटेन, बट यहाँ की जो कॉटन है उस क्वालिटी की है ही नहीं ब्रिटेन की कॉटन जो है। ठीक है, ब्रिटेन के लोग अभी भी किसका पसंद कर रहे हैं? कॉटन। द कॉटन विच आर बीइंग India. प्रोड्यूस्ड इन और कल्टीवेटेड इन इंडिया। तो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे कि बाहर से क्यों मंगा रहे हो? ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहेंगे? बाहर से मत मंगाओ। ठीक है, बाहर से अगर मंगा रहे हो चीजों को, तो जो है कि ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से आ रही हैं। ये यहाँ पे टेक्सटाइल्स मैंने लिख लिया, ब्रैकेट में इंडस्ट्री समझ लो। देयर इज अ फाइट बिटवीन इंडस्ट्रीज हियर, राइट? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइट? तो यहाँ के इंडस्ट्रीज के सामान यहाँ पे आके बिक रहे हैं। ठीक है, यहाँ की इंडस्ट्री जो बना रही है मिल मेड क्लोथ, वो बिक नहीं रहे। जो एलिट ग्रुप है वो अभी भी इनको क्या चाहिए? हाथ से बने हुए चीजें चाहिए। तो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है? रोकना चाहते हैं क्या? इंपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। क्या रोकना चाहते हैं? इंपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। राइट? तो इसके लिए वो क्या लगाएंगे? इसके लिए वो बैरियर लगाएंगे। बैरियर कैसा होगा? टैरिफ बैरियर। ये आपको वहां पे भी पढ़ाऊंगा मैं, याद रखिएगा। टैरिफ बैरियर। अब किसी को तो मना नहीं करोगे कि आओ यहाँ पे जो है अपना सामान मत बेचो। क्या करोगे कि अपनी कंट्री में अगर सपोज तुमने जो है कि किसी चीज को बनाया और उसके 100 रुपए दाम रख दिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इंक्लूडेड है विद प्रॉफिट, 100 रुपए रख दिए, और कहीं से आ रहा है सामान, वो आ रहा है 60 रुपीज का। ठीक है, और तुम्हारे यहाँ बिक रहा है 60 रुपए में, सॉरी 100 रुपए में। तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे गवर्नमेंट से कि इसको रोको। गवर्नमेंट क्या करेगी? ऐसा तो है नहीं कोई दरवाजा है जाके बंद कर देगी और कह देगी कि अब यहाँ मत आना। वो कहेंगे ऐसा है कि तुम जो है कि 45 रुपए मुझे टैक्स दो अलग से। हाँ, तो 60 और 45 कितना हो गया? 105। अब बताओ कौन सा बिकेगा? 100 रुपए वाला बिकेगा, 105 रुपए वाला बिकेगा? सर 100 रुपए वाला। सर 100 रुपए वाला। तो यहीं पे 100 रुपए वाला, फिर यही तरीका अपनाया उन्होंने, बैरियर्स लगा दिए, टैक्सेस। ठीक है, ब्रिटेन में अगर क्लोथ्स आएंगे तो उसको टैक्स, उस पर जो है ज्यादा टैक्स लगा दिए। तो अब जब टैक्स लगने लगा तो जो डिक्लाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा।
अब इन्होंने अपना, अब ये डिक्लाइन हो रहा है तो ये अपना मार्केट पहले कवर अप करेंगे, ब्रिटेन का। कौन? ये इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे ब्रिटेन में सारा अपना कपड़ा बेचो, बेच लेंगे। अब उसके बाद कहेंगे कि अब तो ब्रिटेन में बेच दिया, अब हमें और भी मार्केट चाहिए। तो और मार्केट कहाँ से मिले? तो इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज जो है उनको क्या बनाएंगे, उनके मार्केट को एक तरफ देखेंगे, कहेंगे यहाँ पे एनॉर्मस पोटेंशियल है, लोगों को बेच सकते हैं, ठीक है। और बेचना फिर क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। अब बेचने के लिए ऐसा है कि लोग जो है कि लोगों को ये बताओ कि आपका सामान क्या अच्छा है उनसे, ठीक है, उनको मजबूर करो, तब वो खरीदेंगे, अदरवाइज वो नहीं खरीदेंगे। तो कॉलोनी बनाने से यही तो फायदा हुआ उनको। ऐसा लॉ बनाया जिससे कि जो उनके रॉ मटेरियल थे इंडियंस के, वो सस्ते में बिक रहे थे, और जो हैंडीक्राफ्ट अब सस्ते में बिक रहे थे, साथ ही साथ रेवेन्यू भी देना होता है लैंड का, साथ ही साथ इंडिगो जो है कि ग्रो करो, ओपीएम ग्रो करो, और ठीक है। फिर हैंडीक्राफ्ट की अगर बात की जाए, हैंडीक्राफ्ट और मिल मेड क्लोथ्स की, तो अब जब क्योंकि लोगों की इनकम डिक्रीज हो गई है, तो क्या वो हैंडीक्राफ्ट वाला सामान खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। नो सर। नो सर। वो मिल मेड क्लोथ्स बेचेंगे, ठीक है। तो अब इंडिया में क्या होने लगेगा, इंपोर्ट होने लगा, हैंडीक्राफ्ट भी है और बाहर से क्या आने लगेंगे, क्लोथ्स आने लगेंगे। क्लोथ्स की ही बात हो रही है यहाँ पे पर्टिकुलरली, यहाँ के क्लोथ्स प्लस बाहर के क्लोथ, तो ये सस्ते होंगे, ये वाले बिकेंगे। तो आप देखोगे जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड आप देखोगे कि जो 1815 से पहले का टाइम पीरियड है, उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करता था, ठीक है, और इंपोर्ट कम होता था, ठीक है। बट 1815 के बाद, क्योंकि हम लोग 1814 और 1914 के बीच में है, 1815 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया, एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया, और इंपोर्ट ज्यादा हो गया, ठीक है। आपके अपने घर में क्या होना चाहिए, आप अपने घर से जो है कि अगर कोई सामान बना रहे हो तो ज्यादा बेचने की कोशिश करोगे या ज्यादा खरीदने की कोशिश करोगे? सर ज्यादा बेचने की। बेचने की। सर बेचने की। हाँ, ताकि आपका इनकम बढ़े आपके घर का। तो ये इंडिया भी एक क्या है, घर है। एक्सपोर्ट कर रहे हो ज्यादा तो इसका मतलब इंडिया के लोगों की बेनिफिट होगा, और इंपोर्ट कर रहे हो ज्यादा तो लॉस होगा, ठीक है। आप अपना पैसा दे के खरीदोगे ना, और इसमें एक्सपोर्ट में क्या होगा, आप बेच के आपको पैसे मिलेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो 1815 के बाद से एक्सपोर्ट डिक्लाइन होता है और मेयरली 3% तक आ जाता है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब इसी समय पे एक्सपोर्ट, तो हमने फिनिश्ड गुड का देखो एक्सपोर्ट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, बट रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये बताओ, रॉ मटेरियल का दाम ज्यादा होगा या एक्सपोर्ट का, किसमें ज्यादा फायदा होगा, रॉ मटेरियल बेचने में या फिनिश्ड गुड बेचने में? सर फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड में। ठीक है, फिनिश्ड गुड बेचने में। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए रॉ मटेरियल में, सपोज यू आर सपोज टू प्रिपेयर दाल, ठीक है। तो अब उसमें दाल बनाने में क्या क्या लगेगा आपका जो है कि दाल, सबसे पहले पल्सेस, यू विल रिक्वायर पल्सेस, यू विल रिक्वायर सॉल्ट, ठीक है, फिर हल्दी, टर्मरिक, राइट, ये सारी चीजें लगेंगी, एंड यू विल पुट योर स्किल ओवर इन इट एंड यू विल प्रिपेयर अ दाल। तो जो जो चीजें लगा के आपने जो बनाया है, ठीक है, अब जो आपने बना लिया है उसके दाम को कैलकुलेट करो, और जो आपने रॉ मटेरियल इंक्लूड किया है उसके दाम को इंक्लूड करो, देन यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस। होगा? यस सर। यस सर। एक बड़ा डिफरेंस होगा। आप देखो रेस्टोरेंट में जाके आप खरीदो, आपको पता लग जाएगा, जबकि उससे कम दाम में आप घर पे बना सकते हो। यस ठीक है, सर। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, कहाँ से, इंडिया से, और बहुत सस्ते में, ठीक है, बहुत सस्ते में, ठीक है। 5% से, पहले 5% होता था, अब 35% से 35% हो गया।
अब ये बताओ 5% से 35% जो है कॉटन बिकने लगा, रॉ मटेरियल जाने लगा। अब जो इंडिया में रॉ मटेरियल है वो कम होगा या बढ़ेगा ऐसे केस में? सर कम होगा। सर सर कम हो कम जाएगा। होगा। कम होगा। अब जब इंडिया में रॉ मटेरियल कम है, जो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है या कॉटेज इंडस्ट्री है, तो पहले से ही उनका एक तो महंगा है और रॉ मटेरियल कम है, तो रॉ मटेरियल खरीदने में उनको ज्यादा पैसा देना होगा या कम पैसा देना होगा? सर ज्यादा देना ज्यादा होगा। देना होगा। ज्यादा देना होगा, क्योंकि ज्यादातर रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट हो जा रहे हैं। अब जो बचा है उसी में जो है खरीदना है, तो उसका दाम बढ़ जाता है। अब जब रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया तो क्या एंड प्रोडक्ट का दाम और फर्दर बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा सर, उसको भी सर बढ़ेगा। तो सभी को समझ में आ रही है बात? ये यस सर। यस यस सर। किसी के लिए कंफ्यूजिंग तो नहीं है? नो सर। सर मतलब प्लानिंग तो सर बहुत आगे की करके रखी थी उन्होंने कि ये इससे ये होगा जिस कारण से सर लेबर चीप होगा, इनके प्राइस बढ़ जाएंगे। यस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी चीज का जो है कि आप देखोगे कि डिस्कशन है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग आगे इसको और फर्दर पढ़ेंगे, थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं, राइट। किसी को अगर डाउट होगा मीनवाइल तो जरूर पूछना। कौन रीड करना चाहेगा? नेक्स्ट वन, रेज योर हैंड। एक मानस रिखारी पढ़ो। Yes, sir. 19th century indenture has been described as यहीं से पढ़ना है नीचे से ऊपर से? यहाँ से पढ़ना है। Okay, sir. Never get bored. Recruitment was done by agents engaged by employers and paid a small commission. Many migrants agreed to take up work hoping to escape. मानस, आज आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब माइक का कुछ इशू है, तो आज आप रहने दो, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा सर रही कैन है। आई रीड? Okay, sir. हाँ जैद पढ़ो। सर लव्वे पढ़ो रिक्रूटमेंट जैद। सर पढ़ूं? हाँ। Recruitment was done by agent engaged by employer and paid a small commission. Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or oppression in their home villages. Agents also tempt the prospective migrant by providing false information about final destination, modes of travel, the nature of the work, and living and working condition. Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. Sometimes agent even forcibly abducted less William migrants. 19th century indenture has been described as a new system of slavery. On arrival at the plantation, laborers found conditions to be different from what they had imagined. Living and working conditions were harsh and there were few legal rights, but workers discovered their own ways of surviving. Many of them escaped into the wilds, though it could they faced severe punishment. Others developed a new form of individual and collective self-expression, blending different cultural forms, old and new. In Trinidad, the annual Muharram procession was transformed into a righteous carnival called Hoseh for Imam Hussein, in which workers of all races and religion joined. Similarly, the protest religion of Rastafarianism, made famous by the Jamaican reggae star Bob Marley, is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean. Chutney music, popular in Trinidad and Guyana, is another creative contemporary expression of the post-indenture experience. These forms of cultural fusion are part of the making of the global world, where things from different places get mixed, lose their original characteristics, and become something entirely new. यस, कंटिन्यू। Okay, sir. ओके, Most ऋषभ सिंह आप पढ़ो। Okay, sir. Most indentured workers stayed on after their contract ended.
or returned to their new homes after a short spell in India. Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries. Have you heard of the Nobel Prize winning writer uh, V.S. Naipaul? Some of you may have followed the exploits of West Indies cricketers Shivreen Chanderpaul and Ramnaresh. If you have wondered why their names sound vaguely Indian, the answer is that they are descended from indentured labor migrants from India. From the 1900s, India's nationalist leaders began opposing the system of the indentured labor migration as abusive and cruel. It was abolished in 1921, yet for a number of decades afterwards, descendants of Indian indentured workers, often thought of as coolies, remained an uneasy minority in Caribbean islands. Some of Naipaul's easy novels capture the sense of loss and alienation. Yes, Uh, Arnav, you read. Yes, sir. Indian entrepreneurs abroad. Growing food and other crops for the world market required capital. Large plantations could borrow it from banks and markets. But what about the humble peasant? And enter the Indian banker. Do you know of Shikaripura Shroffs and Natukotai Chittiars? They were amongst the many groups of bankers and traders who finance export agriculture in Central and Southeast Asia, using either their own funds or those borrowed from European banks. They had a sophisticated system to transfer money over large distances and even developed indigenous forms of corporate organization. Indian traders and money lenders also followed European colonizers into Africa. Hyderabadi Sindhi traders, however, ventured beyond European colonies. From 1860s, they established flourishing emporia at busy ports worldwide, selling local and imported cu- curios to tourists whose numbers were beginning to swell, thanks to the development of safe and comfortable passenger vessels. ये क्यूरीज क्या होते हैं? ये छोटे मोटे गहने होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? छोटे मोटे गहने. एम्पोरिया मीन्स एक आप तरीको आप समझ लो, काइंड ऑफ अ छोटा मोटा, क्या कहते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ स्टोर, ठीक है? Okay, sir. यस. Okay, sir. Indian trade आप colony. इसको एम्पोरिया को काइंड ऑफ ऐसे समझो एज अ शॉप, ठीक है? एक छोटा मोटा शॉप अपने पोर्ट पे लगा लिया और वहां पे जो है कि लोकल गहने बेचना, फिर जो है इंडियन के गहने छोटे मोटे बेचना, मतलब छोटे मोटे गहने जो टूरिस्ट खरीद सकें. आप देखते हो कि जब कहीं भी दूर डेस्टिनेशन पे जाओगे तो वहां के कल्चर से रिलेटेड चीजें बिकती हैं Yes, sir. शॉप्स पे, यस कुछ Yes, इस sir. तरीके से, राइट? चलो कंटिन्यू. Yes, sir. Indian trade, colonialism, and the global system. Historically, fine cottons produced in India were exported to Europe. With industrialization, British cotton manufacture began to expand, and industrialists pressurized the government to restrict cotton imports and protect local industries. Tariffs were imposed on clothes imports into Britain. Consequently, the inflow of fine Indian cotton began to decline. From the early 19th century, British manufacturers also began to seek overseas markets for their clothes. Excluded from the British market by tariff barriers, Indian textiles now faced stiff competition in other international markets. If we look at the figures of exports from India, we see a steady decline of the share of cotton textiles from some 30% around 1800 to 15% by 1815. By the 1870s, this proportion had dropped to below 3%. What then did India export? The figures again tell a dramatic story. While exports of manufactures declined rapidly, export of raw materials increased equally fast. Between 1812 and 1871, the share of raw cotton exports rose from 5% to 35%. Indigo used for dyeing cloth was another important export for many decades. And as you have read last year, opium shipments to China grew rapidly from 1820s to become पढ़ा है आपने? Have you studied this in peasants and farmers? Yes, sir. ठीक है.
तो ओपियम बेचा जाता था कहाँ? चाइना में, ठीक है। और चाइना से क्या खरीदा जाता था? चाय, टी, ठीक है। अब देखो जो प्रॉब्लम इंडिया, जो मतलब ओवरऑल सिस्टम इंडिया में था वही सेम चाइना में था। चाइना ने अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया, ठीक है। और चाइना को जो है कि अब ब्रिटिशर्स को चाइना से चाय खरीदना था, टी खरीदना था, तो उसके लिए उनको पैसा देना पड़ता था। तो अब वो ऐसा क्या करें कि चाइना से चाय जो है कि बिना पैसा दिए खरीदे। तो वहां को लोगों को क्या दिला दिया? नशा दिला दिया, ठीक है। उनको नशा दिला दिया किस चीज का? ओपियम का। अब ओपियम कहाँ से उगेगा? इंडिया से। तो इंडिया को ओपियम उठाते थे और चाइना में बेचते थे। अब चाइना को जब लोगों को नशा है, तो नशा का अगर एक बार लत लग गया तो वो उस चीज को करते रहेंगे। तो पैसा देते थे किसको? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को इस तरीके से चाइनीज का पैसा मिलता था, और फिर वही चाइनीज का पैसा उनको वापस करते थे और कहते थे हमें टी दे दो। देख रहे हो कितना घपला कर रहे हैं? यस सर। यस सर। अब वो ओपियम उगाया कहाँ? वो भी किसी और के, मतलब इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी उसके सर, खुद का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। सर पैसा खाना है बस, ठीक है। दिस इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब एक किताब है, देख लेना किसने लिखा है, ठीक है, रीड करो। Okay, sir. China grew rapidly from the 1820s to become for a while India's single largest export. Britain grew opium in India and exported it to China, and with the money earned through the sale, it financed its tea and other imports from China. देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो कंटिन्यू करो, फिर इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, अर्नब। Okay, sir. Over the 19th century, British manufacturers flooded the Indian market. Food grain and raw material exports from India to Britain and the rest of the world increased. But the value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India. Thus, Britain had a trade surplus with India. वेट, अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है आपको। एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, और एक कंट्री सी है। इसको मान लो इंडिया, बी से मान लो ब्रिटेन, इसको मान लो चाइना। तो अब ब्रिटेन क्या कर रहा है? इंडिया से बहुत सस्ते में रॉ मटेरियल किसको दे रहा है? ब्रिटेन को। ब्रिटेन अपने आप को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बेच रही है बहुत सस्ते में रॉ मटेरियल। मान लेते हैं सस्ते में कितने में बेचा है इनको? ये इनको बेच रहे हैं 10 रुपए में, ठीक है। कितने में बेच रहे हैं? 10 रुपए में। 10 रुपए में, ठीक। और ये अपना सामान यहाँ पे क्या करते हैं? इंपोर्ट, अपना एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने में? 100 रुपए में। कितने में किया? 100 रुपए में। तो जब ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको 100 रुपए मिलेगा, किसको? ब्रिटेन को। और जब ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो 10 रुपए उसमें से दे देंगे इंडियंस को। देंगे या नहीं देंगे? Yes, sir. यस सर। ये Yes, बात sir. समझ में आ रही है? तो ब्रिटेन जब एक्सपोर्ट करेगा तो उसको 100 रुपए मिलेगा, और जब इंपोर्ट करेगा तो उसको 10 रुपए देना पड़ जाएगा। तो ब्रिटेन के पास इफेक्टिव कितना बचा? 90 सर रुपए। 90 रुपए। Sir, 90. अब 90 रुपए वो कहाँ यूज करेगा? इसका अभी इसको कहेंगे ट्रेड सरप्लस। इसको क्या कहेंगे? ट्रेड सरप्लस। सरप्लस। ट्रेड उसका क्या है? सरप्लस। सरप्लस वर्ड से आप फैमिलियर हो? कहीं पढ़ा है आपने? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब सरप्लस है। अब ये खोजेंगे कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो हमसे जो है ट्रेड नहीं करती है, और हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड क्या है? डेफिसिट है, कि वो हमें बेच ज्यादा रहे हैं, ठीक है, हम उनका ज्यादा खरीद रहे हैं, हम अपना ज्यादा उनको बेच नहीं पा रहे हैं। तो देखेंगे चाइना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये जो 90 रुपया है, ये 90 रुपए से चाइना को देकर क्या कर लेंगे? अपना जो भी सामान चाइना से खरीदना है उसको खरीद लेंगे, ठीक है। तो इसी को आप पढ़ोगे कि इसी को इन्होंने क्या बुलाया? मल्टीलैटरल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम और पेमेंट सिस्टम। खुद का इन्वॉल्वमेंट बस रख कर क्या करना? दूसरे के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। यही ब्रिटिशर्स ने किया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर एक डाउट है सर, वो जो इंडिया में सर 100 रुपीज में सेल करते थे,
सर वो सस्ता ही था ना, मतलब इंडियंस के लिए तो वो उनके लिए प्रॉफिटेबल था। उनके लिए प्रॉफिटेबल था, उनके लिए प्रॉफिटेबल था क्योंकि उनके पास जो है कि इंडियन के पास और कोई ऑप्शन बच ही यस नहीं रहा सर, है। मिल यस मेड सर, क्लोथ्स के अलावा उनके पास ऑप्शन बच नहीं रहे हैं, उनको खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, यस साथ ही सर, साथ अब चलो ये तो एक इनका इनकम हुआ, फिर उसके बाद आप देखो ये लैंड रेवेन्यू भी लेंगे। ठीक है, इनके ब्रिटिश ऑफिशियल जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो ब्रिटेन चले गए, उनको पैसा भी भिजवाएंगे। यस सर, ठीक है, उनको कह देंगे कि उनको पैसा भी देना है आपको। फिर ब्रिटेन क्या है, होम कॉलोनी, ब्रिटेन कॉलोनी है इंडिया की, सॉरी इंडिया कॉलोनी है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन को होम चार्जेस भी देना होगा। ये सब अलग अलग नाम से क्या करते थे, पैसे ले जाया करते थे। यस सर, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यस यस सर। सर, तो इनका हमेशा क्या होता था, ट्रेड सरप्लस ही होता था, एक इनकम इनका हमेशा जनरेट होता था, और इसी को ये बैलेंस करते थे अदर कंट्रीज से ट्रेड करने में। आज के डेट में भी यही होता है। अगर तुम पढ़ोगे तो आप देखोगे इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल रिलेशन में आज भी यही होता है। यूएस और चाइना के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट था डोनाल्ड ट्रम्प में, अभी भी है जो, ठीक है, वो इसी पे था कि चाइना यूएस को ज्यादा बेच रहा है और यूएस से कम खरीद रहा है, यूएस को बुरा लग रहा है। ठीक है, सभी यस सर, सभी बेचना चाहते हैं, खरीदना कोई नहीं चाहता, या यस सोचते हैं सर, कि अगर हम 100 रुपए का बेचें तो 10 ही रुपए का खरीदें, ठीक है, ज्यादा बेच सकें, ज्यादा खरीदे नहीं। तो अब आप बताइए कि आप एज एन इंडियन कौन सा सामान इस्तेमाल करोगे, स्वदेशी या फिर इंपोर्टेड? सर स्वदेशी। सर सर स्वदेशी, स्वदेशी। स्वदेशी खाएं, स्वस्थ रहें। आप देखते हो कोई बाबा हैं जो ये बात कहते हैं बार बार? यस सर, सर रामदेव बाबा। चलो ठीक है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, राइट? यस सर, यस Yes. सर। चलो तो इसको कंप्लीट कर लो अर्नव। Yes, sir. Thus, Britain had a trade surplus with India. Britain used this surplus to balance its trade deficits with other countries, that is, with countries from which Britain was importing more than it was selling to. This is how a multilateral settlement system works. It allows one country's deficit with another other country to be settled by its surplus with a third country. By helping Britain balance its deficits, India played a crucial role in late 19th century world economy. Britain's trade surplus in India also helped pay the so-called home charges that included private remittances home by British officials and traders, interest payments on India's external debt, and pensions of British officials in India. देखो, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट, ये एक्सटर्नल डेट इंडिया के ऊपर आया कैसे? ये खुद ही ब्रिटिशर्स ने लोन दे दिया। ठीक है, कि हम आपको लोन दे रहे हैं, वी आर फाइनेंसिंग यू, हम मांग रहे हैं तब तो दो, क्योंकि आप ही के अंडर में कॉलोनी इंडिया है, तो आप लोन दो, और फिर उसी में जो है पैसे जो निकले ओवरऑल जो जनरेट हो उसमें से कुछ पैसा कह दो कि ये जो लोन दिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। अभी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. सिस्टमैटिकली अलग अलग हेड्स पे क्या करना, पैसे निकालना। कहीं पे कह दिया इंटरेस्ट पेमेंट, कहीं पे कह दिया रेमिटेंस, कहीं पे कह दिया मतलब, ठीक है, कि होम चार्जेस में हालांकि रेमिटेंस इंक्लूड हो गया, फिर कह दिया पेंशन देना है जो ब्रिटिश ऑफिशियल यहाँ पे काम किए हैं। बहुत तरीके से अलग अलग हेड्स पे जो है के नाम पे पैसे को निकाल दे रहना, ताकि वो कल को ये बता सकें दैट वट एवर वी डिड इन अ सिस्टमैटिक वे एंड इट वाज रिक्वायर्ड टू डू सो। Is this clear to all of you? यस सर। Yes, sir. यस सर, चलो तो प्रिपेयर ऑन नोट्स बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, और अच्छे से याद करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, राइट? Okay, sir. यस सर, यस सर। Okay. So till then, take care of yourself, everyone. Bye bye. Thank you. गुड Thank you, नाइट सर। sir. बाय गुड Good नाइट night, सर, थैंक यू sir. सर। Bye, sir. बाय सर। Bye bye. बाय एवरीवन।